டிசம்பர் 20, 2024 இரண்டாம் நாளாக நடைபெற்ற NTUI அமைப்பின் மாநாட்டில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டு கலாச்சாரத்தை பிற மாநிலங்களில் உள்ள மக்களும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த மாநாடு சென்னையில் நடைபெறுவது இந்திய மாநகராட்சி தொழிலாளர்கள் மத்தியில் பெரும் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதும் அனைத்து மாநில மாநகராட்சி ஊழியர்கள் பிற்காலத்தில் வயது முதிர்வு தங்கள் சொந்த பகுதிகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற வழி வகுக்கும் என்பதுடன் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற உயர்ந்த உன்னதமான பாரதத்தை நாம் காண முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. களத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் திரு அல்போன்ஸ் கோட்டமருதூர். லாரி முதலாளிக்கு சென்றுவிடும். அதே போல் செய்து கொண்டிருக்கும் போது சில டைம்களில் எங்களுக்கு குடித்தண்ணீர் கிடையாது. நாங்கள் லாரியிலேயே உட்கார்ந்து சாப்பிடும் அளவிற்கு கேவலமாக இருந்தது. எங்களுக்கு குப்பை நாற்றம். பஸ்ஸில் செல்வர்கள் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு செல்வார்கள். அந்த சமயத்தில் எங்களுடைய தலைவர் திரு வில்லியன் ரனடே அவர்கள் பஸ்ஸில் அமர்ந்து கொண்டு சென்றார். அப்போது எங்களை கவனித்தார். நாங்கள் குப்பை அள்ளிக்கொண்டு குப்பை மீதே அமர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு நமது யூனியன் தலைவர் காம்ரேட் யசோந்தரா சவான் அறிவுரையின் பெயரில் அவர்கள் எங்களை அணுகினார்கள். குப்பை எல்லும் தொழில் கேவலம் கிடையாது, குப்பை போடுவர்கள் தான் கேவலப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் குப்பையை உருவாக்குவதே மனிதர்கள் தான். ஆனால் நாங்கள் அதை அள்ளிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது கூட அந்த குப்பை மீது அமர்ந்து உண்டோம். ஆகையால் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஆண்டு காலமாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தோம். இப்போது 19 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது நிரந்தரமாக்கி. ஆனால் மும்பை மாநகராட்சியில் நிரந்தர தொழிலாளருக்கான யூனியன் நிறைய இருக்குது. ஆனால் எங்களை யாரும் பார்க்கவில்லை, உங்களுக்கு நல்லது செய்கிறோம் என்று கேட்கவில்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு யூனியன் கத்ராவத் சிரமிக் சங்கம் எங்கள் யூனியன் தான் எங்களை அணுகி எங்களை நிரந்தரம் செய்தது. மிகவும் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் திரு காம்ரேட் வில்லியன் ரனடே அவர்களுக்கு. அதைத் தொடர்ந்து எங்களைப் போல 2500 தொழிலாளர்கள் நிரந்தரம் செய்தது. முதலில் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 7000 தமிழர்கள் இன்று அங்கு வாழ்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு முதல் கடமை நாம் வில்லியன் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அதுவும் இல்லாமல் நிரந்தர தொழிலாளருக்கான ரசீது சம்பள ஸ்லிப் எல்லாருக்கும். ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் முதலாக எந்த கவர்மெண்ட் நிரந்தர சம்பளம் யூனியனோட பெயரே வராது. எங்கள் யூனியனோட பெயரே சம்பள ஸ்லிப்ல வந்துருக்கு. கவர்மெண்ட் சம்பள ஸ்லிப்ல KVSS பேர் சம்பள ஸ்லிப்ல வந்திருக்கு என்றால் எவ்வளவு உழைப்பு, எவ்வளவு போராட்டம், அனைத்து போராட்டங்களையும் தாண்டி இன்று 3 கேஸில் வெற்றி பெற்று நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம் என்றால் அதை KVSS தான். அதற்கு உடனடியாக இருக்கும் NTA மற்றும் சில நிரந்தர தொழிலாளர்களுக்காக உழைக்கும் அனைத்து யூனியன்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் என்று கேஸ் ஓட்டி ஜெயிச்சு ஏசியாவில் முதல் முறையாக நிரந்தரம் செய்தவர் தலைவர் வில்லியன் ரனடே அவர்கள், காம்ரேட் விஜயதர்மி, காம்ரேட் தீபக் பலராவ் அனைவருக்கும் இந்த பேட்டியில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Next speaker is Govinda Rajan, Simpson Workers and Staff Union. Next is Abhijit, All India Union. NTUI के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड गौतम मोदी, इन्होंने अपने भाषण की जो एंड किया वो ये मुद्दा था कि हमारे देश में आज फैसिज्म राज कर रहा है और ये फैसिज्म का हमला ट्रेड यूनियन के ऊपर, लेफ्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, लिबरल पॉलिटिक्स के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, हमारे देश की हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला है। और मैं चाहता हूं कि हम ये फैसिज्म के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, जिसकी शुरुआत में 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री
अमित शाह जी ने जिस तरह से हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया था, उसका मैं धिक्कार करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हाथ ऊपर कर कर जो चाहते हैं वो इसका धिक्कार करें। धन्यवाद। ऐसे वक्त में आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश में आज तक बहुत सारी सरकारें आई और बदल गई, मगर पिछले 10 साल से जो सरकार है और उसका रवैया जिस तरह से है, ये इस देश ने पहले नहीं देखा था। इस देश ने इंपीरियलिज्म देखा था, ब्रिटिश का राज देखा था, लेकिन इस तरह का हिटलरवाद, फैसिज्म पहले नहीं देखा था। यह सरकार आए दिन लोगों के ऊपर अपने हमले बढ़ाते जा रही है। सरकार आते ही 2014 में इन्होंने शुरुआत की, फिल्म इंस्टीट्यूट में जो काम करने वाले, पढ़ने वाले बच्चे थे उनके ऊपर। जनरली आज तक जब भी किसी ने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया है तो वो सरकार बची नहीं है। इन्होंने हमला किया फिल्म इंस्टीट्यूट पर, उसके बाद किया जवाहरलाल नेहरू, ऑक्यूपाई यूजीसी कर वो जो गए थे उनके ऊपर इन्होंने पुलिस की लाठियां बरसा दी। इन्होंने हर एक आंदोलन को कुचलने का तरीका अपनाया। आज तक मुझे याद नहीं है कि इतने छोटे 10 साल के अवधि में हर तरह का हमला लोगों के ऊपर हुआ हो। ओलंपिक्स में जो महिला रेसलर्स ने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते, वो ये बता रही थी कि ओलंपिक एसोसिएशन का कुश्ती का जो प्रमुख है, जो भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। आज तक जब भी किसी ने, ये भारत देश है जिसके इतिहास के बारे में, जिसकी संस्कृति के बारे में आज के जो राज्य करता है इन्हें बहुत प्यार है, और भारतीय संस्कृति में हमारे देश की महिला या लड़कियां मुझ पर यौन शोषण कोई करता है ऐसा कभी झूठ भी नहीं बोलती। अरे बहुत बार सच में होता है लेकिन फिर भी बोलती नहीं है, तो झूठ कैसे बोलेंगी? इतना तो कम से कम सोचना चाहिए था। उन बच्चियों के साथ सम्मान से उनकी समस्या को सुनने के बजाय उनको रास्ते पर जब वो आंदोलन कर रही थी तो घसीट घसीट कर, पीट पीट कर ये सरकार ने मार दिया। ऐसी ये सरकार है। आज तक हमने कभी नहीं देखा था कि आदिवासी के ऊपर कोई राज्य करते पार्टी का नेता पेशाब करेगा। इस देश ने वो भी देखा। हमने देखा हाथरस में एक बच्ची के ऊपर गैंग रेप हुआ, आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए थे, उसकी तहकीकात नहीं हुई, कोई पुलिस की छानबीन नहीं हुई, वो मर गई। उसकी लाश को भी घर वालों को नहीं दिया। ये हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में अंतिम संस्कार करना मां बाप ने या सगे वालों ने, ये बड़ा अहम है, वो भी नहीं करने दिया, पुलिस ने जला दिया। बस दलितों को मार दिया। गुजरात में कोई दलित अपनी शादी की बारात घोड़े पे उच्च जातियों के घर के सामने से कैसे लेके जाते हैं, इसके लिए उनको पीटा। आज हमने देखा मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। मोदी जी को वहां जाने का टाइम नहीं है।
बाकी हर चीज के लिए टाइम है। राज कपूर जी के 100 साल है, वहां जाने के लिए टाइम है, जाओ। आप प्रधानमंत्री हैं तो हर जगह पर जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि आपको राज कपूर की 100वीं जयंती पर जाने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, नंगा कर उनको रास्ते से घुमाया गया, उनके ऊपर सामुदायिक बलात्कार हुआ, इसका वीडियो शूटिंग हुआ। गृह मंत्री वहां गए थे, क्या गृह मंत्री को यह बताया था किसी पुलिस वाले ने? तो फिर गृह मंत्री चुप क्यों रहे? ये कब पता चला? जब इंटरनेट का बैन हट गया तब ये पता चला। क्या ये गृह मंत्री को पता था या नहीं था? पुलिस ने बताया था या नहीं बताया था? क्योंकि पुलिस के सामने ये हुआ था। अगर गृह मंत्री को पता था तो गृह मंत्री ने क्या किया? कश्मीर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाने नहीं दिया। विदेश से इनके चमचे बुलाए गए थे, यूरोपियन यूनियन के, उनको वहां पर जाने दिया। कितनी घटनाएं ऐसी है, कितनी घटनाएं। ये सरकार लोगों के ऊपर अन्याय पे अन्याय करते जा रही है, और इतना अन्याय करने के बाद भी ये सरकार के ऊपर खरोच नहीं आ रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कल जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, वो असली बात कही। अंबेडकर जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में और संविधान के बारे में ये आरएसएस के लोग जो सोचते हैं वही उन्होंने बोल दिया। सच ही बोला उनके जो दिल में था, लेकिन गलत टाइम पे सच बोला, इसके लिए फंसे हैं। वो तो ऐसे ही है, पहले से ही ऐसे है। देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस के 10 लोग दिखाइए, 10 लोग दिखाइए जो देश की आजादी के लिए 1 साल जेल गए हो। आप सब लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, डालिए गूगल पर और बताइए 10 नाम जो 1 साल के लिए जेल में गए। नहीं गए थे क्योंकि ये आजादी की लड़ाई में नहीं थे। कहने का बड़ा शौक है। जब वंदे मातरम कहने के बाद जेल जाना पड़ता था तब ये घर में बैठे थे। उस वक्त ये ब्रिटिशों के दलाल थे, आज ये अंबानी अदानी के दलाल हैं। क्या क्या नहीं किया? अरे हमारे देश में ऐसा कभी नहीं देखा था। पंतप्रधान कितना पढ़ा है, ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ये नहीं है कि वो इतना पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए, ये कॉलेज से पढ़ना चाहिए, नहीं। हमारे महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे, सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़े थे, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, मगर उनको अंग्रेज का राज क्या है ये समझता था, और वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे। इनको ना तो अंग्रेज समझा, ना तो अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में आया। अरे जिस पंतप्रधान की डिग्री का कोई अता पता नहीं, वो हमारे देश के लोगों को तुम हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट पूछ रहा है, जिसके कॉलेज के सर्टिफिकेट का पता नहीं, वो लोगों को पूछ रहा है तुम्हारे जन्म का सर्टिफिकेट दिखाओ। सीए एनआरसी इन्होंने लाया, फिर भी हम चुप बैठे, देश चुप बैठा। पिछले इलेक्शन के टाइम पे पुलवामा हुआ। पुलवामा में क्या हुआ? हमारे देश के अंदर, अभी ये मैं नहीं बोलता हूं, उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे वही आज बोल रहे हैं कि वहां पर एक तो जवानों को बॉर्डर पर भेजना था, ये सड़क से भेजना चाहते थे, तो जवानों ने कहा, उनके अफसरों ने कहा कि ये डेंजरस है, हमको प्लेन दे दीजिए, हेलीकॉप्टर दे दीजिए। मोदी सरकार ने कहा बहुत खर्चा होएगा, इतना पैसा नहीं है। एक ऐसे देश में हमारे जवानों को जवाब दिया गया कि पैसा नहीं है। ऐसा देश जो
देश के प्रधानमंत्री को घूमने के लिए, अकेले को घूमने के लिए 8,000 करोड़ का प्लेन ले सकता है ऐसा देश, इतना गरीब देश प्रधानमंत्री के लिए एक पूरा का पूरा प्लेन खरीदता है, मगर जवानों को जाने के लिए प्लेन नहीं दे सकता। हमारे देश के अंदर कश्मीर में अगर आप घूमने जाओ तो हर 100 मीटर पे वहां पर पुलिस वाला, पैरामिलिट्री वाला खड़ा है, और जब सैनिक वहां पर ड्यूटी चेंज के लिए जाने वाले हैं, जो ड्यूटी पर है वो वापस आने वाले, नए सैनिक जाने वाले हैं, ऐसे वक्त में वहां पर क्या डिप्लॉयमेंट थी, ये सवाल पूछना नहीं है। और वहां पर आके लोगों ने धुआंधार गोलियां बरसाई और हमारे सीआरपीएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हमारे जवान हैं वो मर गए। तो जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर इसके बारे में सवाल उठाते हैं तब थोड़ा सा याद आता है जिस तरह से पिछले साल नवंबर में इजराइल में लोग घुसे थे और उसके बदले के लिए इजराइल ने जिस तरह से पैलेस्टाइन के ऊपर हमला कर कर, जिस तरह से गाजा के ऊपर हमला कर कर पूरी बस्तियां जला दी, क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती है? हमारा देश किस सोच में जा रहा है, हमारे देश के लोग किस सोच में जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। ये कैसे है ये नहीं है, चिंता का विषय यह है कि हम कब आंखें खोलने वाले हैं। किसानों के नाम पर कानून लाए, कानून का नाम किसान कानून, और ऐसा कानून जो किसानों के खिलाफ है। वर्कर्स के लिए कानून लाए 4, हमारे 44 कानून जो लोगों ने पिछले 100 साल से लड़कर कमाए थे वो सभी के सभी बंद कर दिए और नए 4 कानून लाए। कानून का नाम क्या? कामगारों के लिए, वर्करों के लिए, मजदूरों के लिए कानून। हमने डिमांड नहीं की थी नई कानून की, सरकार ने लाए। और कैसे लाए? जो कि मजदूरों के खिलाफ है, यानी ये जिसका नाम लेते हैं उसी के खिलाफ काम करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर जी को दिन में 4 बार नमस्कार करेंगे, मोदी जी तो पूरा 100 के अभिवादन करेंगे। यही तो नौटंकी है। यानी बाबा साहेब और बाबा साहेब के विचार ये दोनों एक चीज है, उसको सेपरेट करो। बाबा साहेब को सेपरेट करो, उसकी पूजा करो और उनके विचार जो है उसको कुचल डालो। यही चल रहा है पिछले 10 सालों से। पार्लियामेंट सिस्टम में मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर आते ही नहीं है, कभी नहीं आते हैं। क्या यह सिस्टम अभिप्रेत है? हम यह सिस्टम चाहते हैं? आज हम देखते हैं कि बाबा साहेब जी ने हमारे देश में अलग अलग व्यवस्था बनाई है। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, वो कानून को लिखित स्वरूप में लेकर उसका अमल करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर है। अगर कोई वो कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर एफआईआर लिखने का काम पुलिस करती है, वो एफआईआर की सुनवाई करने का काम कोर्ट करती है, फिर उसको सजा देती है, जेल में चला जाता है। यह एक प्रकार की व्यवस्था है। फिर हमारे देश में सीएजी जैसी एक व्यवस्था है जो प्रधानमंत्री से लेकर पूरे गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है वो इंडिपेंडेंट है। एक इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन लेगा, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और एक जुडिशरी है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है जो एक इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है। ये अलग अलग इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए और बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए और बचाने के लिए ये व्यवस्थाएं की है। मगर आज पिछले 10 साल से मोदी जी को ये सबके ऊपर सुपर कंट्रोल चाहिए। आप देखिए
लोकसभा की इलेक्शन महाराष्ट्र में 5 फेजेस में हुई, जो कि 48 सीट्स थे। वही महाराष्ट्र है, उसकी बाउंड्री बदली नहीं है। मगर अब की बार जब स्टेट की इलेक्शन हो गई, एक दिन में पूरा महाराष्ट्र की इलेक्शन हो गई। तो फिर पिछली बार 5.5 महीना क्यों चली? ये बार सब साथ में ही थे। 1 नेशन 1 इलेक्शन इन्हीं का प्रोग्राम था ना। मगर महाराष्ट्र की इलेक्शन और हरियाणा की इलेक्शन, झारखंड की इलेक्शन एक साथ नहीं लिए, अलग अलग लिए। ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? मोदी जी और अमित शाह इलेक्शन के बारे में कुछ भी बोलेंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अपोजिशन वाला कुछ भी बोलेगा, इमीडिएट उसको नोटिस जाएगी। मोदी जी बोलेंगे तो नोटिस मोदी जी को नहीं जाएगी, अमित शाह को नहीं जाएगी, पार्टी को जाएगी। हम ये देखते हैं महाराष्ट्र में जहां पर जो सरकार बनी थी, वो सरकार को आपने भी देखा होगा, शायद आपके यहां पर टीवी पे आया होगा, मालूम नहीं, 50 खोके और सब कुछ ओके। आपने देखा था क्या? महाराष्ट्राचे तुम्ही कोल्हापूरवाले, तुम्ही नाही हो, बाहेरच्या राज्यातल्यांनी बघितलंय का? 50 खोका और सब कुछ ओके। 50 खोका यानी 50 करोड़ जो शिवसेना के एमएलए तोड़े गए थे। ये डेमोक्रेसी की बात करते, बाबा साहब की बात करते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, पैसे, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब का डर दिखा के पिछली बार की कर्नाटक की सरकार को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, 2 बार तोड़ा। महाराष्ट्र की एनसीपी को तोड़ा। तोड़ने के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में अगर अर्णब गोस्वामी पकड़ा जाता है तो रातों रात सुनवाई होती है। मगर जहां पर चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं, उसके उल्टा जाकर, विपरीत जाकर स्पीकर साहब अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। और ऊपर मोदी जी गणपति की आरती करने चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। आज तक ये कभी नहीं हुआ था। आज तक जो जो चीजें नहीं हुई थी, वो आज हमारे देश में हो रही है। आज हम देखते हैं ऐसे समय में मजदूरों के ऊपर हमला हो रहा है। और क्या हो रहा है? एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले गौतम अडानी का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना था? वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। ट्रांसलेशन जरा तमिल में ट्रांसलेशन कीजिए। मैं 1 सेकंड रुकता हूं। 2014 मोदी जी आने से पहले गौतम अडानी का नाम कितने लोगों ने सुना था? जरा हाथ ऊपर करिए। एक ही आदमी ने सुना था भाई। टाटा 100 साल 150 साल से इस देश में हर चीज बना रहा है। लोखंड से लेके स्टील से लेके, कपड़े से लेके, सीमेंट से लेके कंप्यूटर तक बिरला है। 100 साल से ज्यादा है। इनसे आगे अडानी 10 साल में कैसे गया? क्या हमारा दिमाग चलाने का भी फर्ज नहीं है क्या? आपके घर में, ये हॉल में एक चीज बताओ जो अडानी ने बनाई है। पंखा, एसी, ट्यूबलाइट, कुर्सी, चप्पल, चश्मा, मोबाइल, पेन, माइक, क्या चीज अडानी ने बनाई है? तुम्हारे घर की एक चीज बनाओ जो अडानी ने बनाई हो, तो फिर ये अमीर हुआ कैसे? अडानी अमीर हुआ क्योंकि आज तक पब्लिक सेक्टर में हमारे देश ने जो जो बनाया था, वो मोदी जी ने सस्ते भाव में बेच दिया और अडानी और अंबानी ने खरीद दिया। इसीलिए ये सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है। हम दो यानी दिल्ली में बैठे हुए मोदी और शाह, हमारे दो यानी अडानी अंबानी। इसलिए अडानी अमीर पे अमीर होते गए। ये नया मॉडल है, मोदी है तो यही मुमकिन है।
कल के भाषण में कॉमरेड गौतम मोदी जी ने नहीं, गौतम मोदी ने जो कहा था कि डिस्पैरिटी बढ़ रही है, अमीर जिस रफ्तार से अमीर हो रहा है और गरीब एकदम स्लो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। मगर जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है? यहां पर कोल्हापुर के लोग आए हैं, कोल्हापुर की न्यूज क्या आई थी पता है? 2 साल पहले कोल्हापुर में एक ही दिन 40 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां एक ही दिन खरीदी गई। एक तबका अमीर पे अमीर होते जा रहा है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी का नतीजा है। और दूसरी तरफ जो संगठित मजदूर था, वो संगठित मजदूर कम होते जा रहा है। कितना कम होते जा रहा है? अभी तो हम बीच में सुनते थे कि वो 7% है, अभी कल परसों हमने किसी से सुना तो वो उससे भी नीचे गया है, 4% तक गया है। और असंगठित क्षेत्र जिसमें चर्चा हमने की पिछले कल से आज से कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है, जिसमें मानसेवी है, जिसमें अप्रेंटिस है, ये सब बढ़ रहे हैं। किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहा है, ये है हकीकत। एक बीच में सर्वे आया था, इकोनॉमी की हालत देखने वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी चीजों की खरीदी हो रही है। तो जो BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, ये जो महंगी गाड़ियां हैं, इनकी तो बहुत जोर से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एक क्लास बहुत अमीर होते जा रहा है। और दूसरी तरफ आया था, जो लोग हमारे देश की जनता पहनती है, सब पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स, अंडरवेयर, बनियन, ये जो है इसकी खपत कम, रेट ऑफ उसका सेल जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब पैसा कम है तो बाहर का जो शर्ट है वो फटा हुआ हम पहन नहीं सकते, मगर अंडरवेयर, अंडरगारमेंट, बनियन फटी हुई पहन सकते हैं। तो जब एक ये मार्केट वालों का सर्वे था कि जब अंडरवेयर का सेल कम होता है, इसका मतलब लोग वो पैसा बचा रहे हैं, फटी हुई को सिला कर पहन रहे हैं। ये आज हकीकत है। हमारे नौजवानों को कहां नौकरी मिलेगी, इसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भविष्य नहीं दिखा रहा है। आज जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आज शिक्षा जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है, वो अधिकार कुचला जा रहा है और प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी उसी तरह से आई है। हमारे घर कहां होंगे किसी को पता नहीं है, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे ये पता नहीं है। हमारे जो अधिकार है, स्कूल का अधिकार, मेडिकल फैसिलिटी का अधिकार, हॉस्पिटल में हमारी दवाई मिलने का अधिकार, ये सभी अधिकारों को कुचला जा रहा है। और दूसरी तरफ मेहरबानी की जा रही है, आपको मुफ्त में राशन देंगे, आपको लाडली बहना बोलकर पैसा देंगे, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण सांगून पैसे दिले, यानी आपको मेहरबानी करेंगे, आपका अधिकार, आपका हक नहीं देंगे। और जब इंसान को हक छोड़कर मेहरबानी पर जीने की आदत पड़ जाती है, तो भाजपा की सरकार ही हमारे पास सर पर आएगी। हम जो पैदा हुए हैं, वो जो एक नारा था ना, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, ये बात को हमको यूनियन हो नहीं हो लोगों तक पहुंचाना होगा। अलवा में हमने एक घोषणा की थी, हमारा पे कमीशन, याद है क्या वो घोषणा? कि जो मजदूर है, परमानेंट लोग हैं सरकारी में, उनको 7th पे कमीशन, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है। तो हम जो मजदूर हैं, जो हर जगह पर काम करते हैं, स्विगी जैसे लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, आज टीचर कॉन्ट्रैक्ट में है, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट में है, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट में है, डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट में है। ऐसे वक्त में हमको हमारा सवाल पूछना है कि हमारा वेतन आयोग, हमारा पे कमीशन कहां है? ये बातों को लेकर, असली मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाना है। लेकिन आज
इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। ऐसे देश में जहां पर 80% हिंदू है, देश का पंतप्रधान हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर हिंदू है, सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हिंदू है, मिलिट्री का चीफ हिंदू है, नेवी का चीफ हिंदू है, एयरफोर्स का चीफ हिंदू है, सभी बड़े भांडवलदार अंबानी, अदानी, बिरला हिंदू है, और फिर भी हिंदू खतरे में है। और ये लोगों ने सोच लिया है कि हाँ हिंदू खतरे में है। अरे हमारे जो लेबरर्स जाते हैं दुबई में, सऊदी में और ओमान में, वो आने की बात कभी नहीं करते कि भाई हम मुसलमान देश में गए थे, हिंदू खतरे में है। लेकिन जो मेजॉरिटी हिंदू देश है वहां हिंदू खतरे में है। वो अंबानी के बाप की एक नारा था ना, मोबाइल आया तभी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वो हुआ है, दुनिया मुट्ठी में, यानी हमारे दिमाग उन्होंने अपने मुट्ठी में लिए हैं। और ये दिमाग मुट्ठी में लेने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो है मीडिया। एक सबसे बड़ा मीडिया हाउस अंबानी के पास, दूसरा सबसे बड़ा मीडिया हाउस अदानी के पास। आप क्या पढ़ेंगे, क्या आपके सामने आएगा, ये मीडिया तय कर रही है। आज ये मीडिया आपको गुमराह कर रही है और देश गुमराह हो रहा है। इसके लिए कितना भी झूठ बोलो वो लोगों को सच लगने लगा है। बटेंगे तो कटेंगे, लोगों को हाँ सच है। अरे क्या सच है? सच ये है कि वर्कर्स को बांटा है इन्होंने, परमानेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अलग है, एक ही यूनियन में नहीं है। हम बटे हैं इसलिए कटे हैं। कारखाने पे कारखाने बंद होते जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा भयानक हमने यहां पर सुना, कॉमरेड कुचेलन 50 साल से जिस यूनियन में प्रेसिडेंट थे वहां पर उनका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मुद्दा आगे लाते हैं। हम चल रहे हैं, हमारे दिमाग कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? देश का दिमाग इन्होंने मुट्ठी में कर लिया है और ये हमारी बीमारी है। और इसको अगर ठीक करना है तो वर्किंग क्लास को आगे आना पड़ेगा। वर्किंग क्लास को आगे कैसे आएंगे? अगर वर्किंग क्लास के कामगार मजदूर ये सोचेंगे कि कुचलन हमसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी परमानेंट वर्कर की पगार 1 लाख और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की पगार वही काम करने वाले की 13,000, तो कुचलन 13,000 वालों के लिए ही लड़ेंगे, एनटीयूआई 13,000 वालों के लिए ही लड़ेगी। यह हमको तय करना है। अगर नहीं लड़ोगे तो परमानेंट वर्कर दिखेगा नहीं। 4% पर आ गया है, 4% पर आ गया है, वो भी खलास हो जाएगा। तो एनटीयूआई की आज जब ये हमारे ऊपर के हमले बढ़ रहे हैं, तब आज जरूरत यह है ना कि परमानेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई में जाए, बल्कि सभी संगठन एक होकर मजदूरों की आवाज बुलंद करना चाहिए। एक ही मिनट बताता हूं, 2 लोगों ने मोदी जी का 56 इंच का सीना पंक्चर कर दिया। एक किसानों ने 1 साल तक रहे और दूसरा ट्रक ड्राइवरों ने नया कानून निकाला था मोदी सरकार ने कि अगर ट्रक एक्सीडेंट करके जाता है तो उसको 7 साल सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना देंगे। ट्रक वालों ने ट्रक खड़ा कर दिया, मोदी का 56 इंच का सीना पंक्चर कर दिया, 5.5 इंच का हो गया। 2 दिन के अंदर कानून वापस लेने लगाया। आज सोचिए, अगर स्टूडेंट्स, अगर गिग वर्कर्स, अगर हम परमानेंट वर्कर, म्युनिसिपैलिटी के वर्कर, बैंक के कर्मचारी, एफसीआई के कर्मचारी, यहां के सभी कामगार, अगर हम एक हो जाते हैं तो आज भी हमारी ताकत कम नहीं है। इसके लिए मैं
एकता के पक्ष में, और ये जिस तरह से हमारे देश में धर्म का, जाति का पॉलिटिक्स चल रहा है और जिस तरह से यहां पर फैसिज्म आया है उसके खिलाफ, और ये जो बढ़ रहे, अमीर अमीर होते जा रहे और गरीब की हालत बहुत ही खस्ता हो रही है, ये सब मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से हो रहा है। और ये पॉलिसी हिटलर की पॉलिसी है। ये पॉलिसी हम विरोध करना चाहिए और फैसिज्म के खिलाफ सभी मजदूरों को एक आवाज होना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो बोलिए हम सब, हम सब। जय भीम, लाल सलाम।
இந்த சேனல் மக்களுக்காக செயல்படுகிறது என்று நீங்கள் நம்பினால், வாய்ப்பிருந்தால் எங்களுக்கு முடிந்த உதவியை செய்யுங்கள்.